Jay Siaram, Chapter Surface Chemistry. Adsorption, the phenomena of attracting and retaining of the molecule of one substance on another substance, resulting into higher concentration of the on the surface, is known as adsorption. जैसे ये मोबाइल है, इसके ऊपर चॉक पार्टिकल्स है, तो ये क्या एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल. ओके. एडजॉर्बेट द सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब, द सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब उसे कहते हैं एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेंट द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब. जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ये एडजॉर्बेंट है, और एडजॉर्बेट ये चॉक हो गया. ओके. Desorption, the reverse of adsorption, removal of adsorbate from the surface of adsorbent is known as desorption. Sorption, the process in which adsorption and absorption both takes place simultaneously. Okay. Occlusion, adsorbate गैस हो और adsorbent अगर solid हो. The adsorption of gas on solid, the adsorption of gas on solid. ठीक है. जैसे यहाँ पे निकल सॉलिड है और H2 गैस है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C से बनाता है ये C सिंगल बॉन्ड C. ओके. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज concentrated only at the surface. In adsorption, the substance is concentrated only at the surface, does not penetrate in the bulk of adsorbent. Okay. Or in absorption, the substance is uniformly distributed throughout the bulk of a solid. ठीक है. ये हो गया एब्जॉर्प्शन. और एड्जॉर्प्शन ये एड्जॉर्बेंट था और इसके ऊपर ये एड्जॉर्बेट. ओके. अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, absorption and sorption. Example of adsorption, absorption and sorption. Silica gel adsorb water vapor. Silica gel adsorb water vapor, whereas anhydrous calcium chloride absorb it. Silica gel adsorb water vapor, whereas anhydrous CaCl2 absorb it. Okay. Charcoal adsorb ammonia gas, while water absorb it. Charcoal adsorb ammonia gas while water absorb it. ठीक है. Dyes adsorb as well as absorb on the surface of cotton fibers. Okay. Thermodynamics of adsorption. Enthalpy, heat of reaction, delta H. देखते हैं. During adsorption, weak van der Waals force or strong chemical bonds are formed and heat is released. This heat is known as heat of adsorption. Delta H always negative होता. Exothermic, delta H less than 0. Okay. Entropy, delta S, degree of randomness. During adsorption, molecules of adsorbate get localized. तो ये भी negative हो रहा, कम हो गया. Yes, delta S less than 0. Okay. gives free energy, delta G is equals to delta H minus T delta S. delta G is equals to delta H minus T delta S. delta H ये भी नेगेटिव है और फिर डेल्टा S ये भी नेगेटिव आया. यस. फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा G इज लेस देन 0 होना चाहिए. तो फिर हाँ, और ये होता तो है नेचुरली ही, तो यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन होना चाहिए टी डेल्टा एस से. यस. इन एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0 एंड ऑल्सो डेल्टा जी लेस देन 0. ओके. एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. देन डेल्टा जी इक्वल्स टू 0 होता है एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे. यस. तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस and then T is equals to delta H upon delta S. Okay. Factors affecting adsorption of gas on solid, जिसे occlusion कहते हैं. Surface area, adsorption surface area के directly proportional है. Yes. Temperature के inversely proportional है. क्यों inversely proportional है? टेम्परेचर अगर देंगे तो उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है वो सब तो हीट से हटने लगेगा. जितना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन तो अब डिक्रीज़ हो गया. टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन कम होता जा रहा. हाँ. तो इससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ऐसे भी देख सकते हैं डेल्टा एच जब नेगेटिव होता इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रिएक्शन बैकवर्ड होता था. डेट्स वाई भी. ओके. प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट एक टाइम तक, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता वैल्यू. ओके. Nature of gas, easily liquefiable gas adsorb more radially. Easily liquefiable gas
easily liquefiable gas adsorb more radially, मतलब more fastly. Adsorption is directly proportional to liquid. Nature of liquid is directly proportional to critical temperature is directly proportional to A upon B. जैसे टी सी इक्वल्स टू 8A अपॉन 27 RB, टी सी इक्वल्स टू 8A अपॉन 27 RB. टी सी इंक्रीज कर रहे हैं, जिस लिक्विड का टी सी ज़्यादा होगा उसका एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. टी सी क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर एवर विच द गैस कैन बी लिक्विफाई temperature above which the gas cannot be liquefied. Temperature above which gas cannot be liquefied. इसके ऊपर और ये लिक्विफाई नहीं हो सकता. मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसका एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा. इसका एक ऑर्डर है गैस का. हम उसे हो गया H2 ने N2O O2 को CO मिठाई खिलाई. मिठाई से हो गया मिथाइल CH4 मिठाई खिलाई. कार से हो गया CO2 कार में वो हकला HCl वो हकला नहीं रही थी. NH3 नहीं रही थी, सोच रही थी. SO2 तो हमने H2 हमने N2 हमने उसको O2 को CO मिठाई CH3 मिथाइल मिठाई खिलाई. वो मिठाई खिलाई कार में CO2 कार से हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार में वो हकला नहीं रही थी, वो हकला HCl हकला नहीं रही थी. NH3 सोच रही थी. SO2. ओके, ये सबसे छोटा था, सबसे कम था H2, सबसे ज़्यादा किसका है? SO2 का. सरफेस एरिया इसका साइज़ भी ज़्यादा है तो ये जल्दी एड्जॉर्ब हो जाता. ऐसे भी याद रख सकते हैं. ठीक है. हाँ, कंपेयर टेम्परेचर इधर हो गया एड्जॉर्प्शन और इधर हो गया प्रेशर. तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे ये क्या होता? कम होते जाता एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर. इधर एड्जॉर्प्शन है और ये प्रेशर, इन दोनों के बीच का ये ग्राफ है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाते गया तो ये कम होता गया. तो T3 सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था T3 का, फिर उससे कम T2 का, उससे कम T1 का. तो मतलब यहाँ पे T3 सबसे नीचे है, फिर उससे ऊपर T2, फिर एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कम है T1 में, क्योंकि इस टाइम टेम्परेचर कम था. टेम्परेचर कम में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते गया एड्जॉर्प्शन कम होता गया. ओके, अब देखते हैं फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन. फिजिजॉर्प्शन इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडरवॉल फोर्सेज. फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन इट इज़ काउज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. Okay, physisorption it is not specific in nature. Chemisorption it is highly specific in nature. Physisorption it is reversible in nature. Chemisorption it is irreversible. Physisorption it is it does not specific in nature, it is reversible in nature. Okay, और chemisorption में it is irreversible in nature, it is highly specific in nature. Okay, फिर उसके बाद physisorption it depends on the nature of gas. More easily liquefiable gases are adsorbed radially. और फिर केमिजॉर्प्शन में it also depends on nature of gases which can react with the adsorbent, so chemisorption. Okay, physisorption enthalpy of adsorption is low, 20 to 40 kilojoule per mole in this case, but chemisorption में enthalpy of adsorption is high, 82 to 240 kilojoule per mole in this case. 82 to 240 kilojoule per mole in this case. Enthalpy of adsorption is high, 82 to 240 kilojoule per mole chemisorption में. Okay, physisorption यहाँ पे क्या? low temperature is favorable for adsorption. Low temperature is favorable for adsorption. It decreases with increase of temperature. Physisorption low temperature is favorable. Physisorption low temperature is favorable for adsorption. Low temperature is favorable for adsorption. It decreases with increase of temperature. Low temperature is favorable for adsorption. हाँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर वो वाइब्रेट करके ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा तो वो हट जाएगा. लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन. इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. और फिर केमिजॉर्प्शन में हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन.
High temperature is favorable for adsorption. It increases with the increase in temperature. High temperature is favorable for adsorption. High temperature is favorable for adsorption. It increase with increase in temperature. Okay. अब देखते हैं फिजिक्स ऑप्शन का. नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड. नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड. बट केमिस ऑप्शन में हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज समटाइम्स नीडेड. ओके. फिजिक्स ऑप्शन it depends on the surface area. It depends on the surface area. It increases with an increase of surface area. But chemis option में it also depends on the surface area. It too increase with increase in surface area. Physics option में it result into multimolecular layer. It results into multimolecular layer on adsorbate surface under high pressure. It result into multi-molecular layer on adsorbent surface under high pressure. But chemis option में it result into unimolecular layer. Okay. ये एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर उसके बाद जब हाईएस्ट पीक पे पहुँच गया फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगा. ओके. कुछ क्वेश्चन से देखते हैं. adsorbate acetic acid on activated carbon is adsorbed acetic acid on activate carbon is adsorbate एक्टिवेटेड कार्बन ये क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट हो गया. तो फिर एसिटिक एसिड क्या हो गया, एड्सॉर्बेट. ओके. Adsorption of gases on solid is exothermic because interaction develop between gases and solid particles. The nature of bonding force in adsorption are both chemical and physical are possible. Okay, which of the following is not applicable to chemisorption? Which of the following is not applicable to chemisorption? It is reversible. हाँ ये वाला है. Which gas will be adsorbed on the solid to greater extent? Which will be adsorbed critical temperature, having high critical temperature? Which gas is adsorbed to maximum amount by activated carbon? Which gas is adsorbed to maximum amount by activated carbon? Carbon dioxide, helium, hydrogen, CO. कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा था. Yes. Absorption and adsorption are respectively bulk phenomena और surface phenomena. ठीक है. Absorption क्या है, when adsorption and absorption takes place simultaneously. Okay. अब देखते हैं Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm. Physisorption के लिए the variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature. The variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature. The variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature. Extent of adsorption क्या हो गया, x by m. The mass of adsorbate adsorb on adsorbent, x by m. x क्या हो गया, mass of adsorbate, और m हो गया mass of adsorbent. और m हो गया mass of adsorbent. The mass of adsorbate adsorb on the adsorbent. The mass of adsorbate adsorb on the adsorbent, x by m. x हो गया mass of adsorbate, m हो गया mass of adsorbent. Freundlich adsorption isotherm. In case of solution P is equals to C, concentration P हो गया x by m is equals to
k is c की पावर 1 अपॉन n, x बाय m इक्वल्स टू k p की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि x बाय m और इधर p है। पहले O से A तक ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर A से B तक ये यहाँ कर्व है, फिर उसके बाद B के आगे कांस्टेंट है B, ये क्या है सैचुरेशन प्रेशर। K और N कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट x बाय m इक्वल्स टू के पी इन ओ ए 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 लेते हैं। ऐसे होता क्या है x और कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, p इक्वल्स टू सी मान लेते हैं, तो फिर x बाय m इक्वल्स टू k c की पावर 1 अपॉन n ले लेते हैं, ओके। अब देखते हैं केस फर्स्ट इन ओ ए 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 एट लो प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p के, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यस x बाय m इक्वल्स टू के पी, ओके। फिर केस सेकेंड एट मॉडरेट प्रेशर, केस टू एट मॉडरेट प्रेशर in AB x by m is equals to k p to the power 1 upon n, x by m is equals to k p to the power 1 upon n, x by m is equals to k p to the power 1 upon n, 1 upon n is equals to 0.2 to 0.5 गिवन है NCERT में। हाँ 1 अपॉन n ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 1 से कम, तो 1 अपॉन n की वैल्यू गिवन है 0.2 to 0.5 x बाय m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 अपॉन n, 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0.2 to 0.5। केस 3 एट वेरी हाई प्रेशर आफ्टर b, यहाँ पे 1 अपॉन n इक्वल्स टू 0 हो जाता, मतलब x बाय m इक्वल्स टू k p टू द पावर 0, x upon m is equals to k p to the power 0 is equals to k at high pressure. Adsorption is independent of pressure. At high pressure, adsorption is independent of pressure. x by m is equals to k constant हो चुका है यहाँ पे ये, ठीक है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर जाए, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे x by m डिक्रीज होता, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होते जाता टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यस। x by m is equals to k p to the power 1 upon n, x by m is equals to k p to the power 1 upon n। केस फर्स्ट में ये 1 upon n 1 के इक्वल हो जाता एट लो प्रेशर यहाँ पे प्रेशर कम है, ये नीचे x एक्सिस पे प्रेशर है तो यहाँ पे भी प्रेशर कम है, तो 1 upon n is equals to 1, देन x upon m is equals to kp, ओके। फिर उसके बाद इन ए बी यहाँ पे ये 0 से ज़्यादा होता 1 upon n और 1 से कम 0.2 to 0.5 के बीच में ये वेरी करता, ठीक है, एट मॉडरेट प्रेशर। फिर एट हाई प्रेशर यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाता प्रेशर के, x अपॉन m इक्वल्स टू k p की पावर 0, x अपॉन m इक्वल्स टू k, ओके, x अपॉन m इक्वल्स टू k p टू द पावर 1 अपॉन n, ये सबके लिए, ठीक है। अब देखते हैं लैंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मी, ये केमीजॉर्प्शन के लिए। केस फर्स्ट यहाँ पे x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ये है, ठीक है। x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ए बी यहाँ पे कांस्टेंट है, ओके। केस ए ओ ए यहाँ पे जब 1 बहुत ज़्यादा है बी पी से एट लो प्रेशर, तो यहाँ पे भी x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी हो गया, मतलब x अपॉन m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। वहाँ पे भी यही हो रहा था केमिजॉर्प्शन में भी, मतलब फिजिजॉर्प्शन के लिए जो वो पढ़ रहे थे फ्रंट लीच आइसोथर्म, उसमें भी यही हो रहा था, ठीक है। केस 2 ए बी एट मॉडरेट प्रेशर, x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर x अपॉन m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, सेम वही है, ओके। केस 3 आफ्टर b 1, ये बहुत ही कम है bp से, हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता, x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी पी, x अपॉन m इक्वल्स टू ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू ए अपॉन बी, तो यहाँ पे बस ये कांस्टेंट बच गया, तो मतलब एट हाई प्रेशर x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। ड्रॉ ग्राफ ऑफ log x अपॉन m वर्सेस log p फॉर फिजिजॉर्प्शन। x अपॉन m
एक्स अपॉन एम इज टू की पी की पावर 1 अपॉन एन, तो दो साइड लॉग लेते हैं तो लॉग एक्स बाय एम इज टू लॉग के पी की पावर 1 अपॉन एम 1 अपॉन एन। हाँ, किसके बीच में पूछा, लॉग एक्स अपॉन एम वर्सेस लॉग पी के बीच में। लॉग एक्स अपॉन एम इज टू लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1 अपॉन एन। लॉग एक्स अपॉन एम इज टू लॉग पी प्लस 1 अपॉन एन लॉग 1 log k plus 1 upon n log p, y equals to c plus mx। log x upon m, ये y एक्सिस पे, ठीक है, x एक्सिस पे log p, फिर ये इंटरसेप्ट हो गया log k और ये स्लोप हो गया 1 अपॉन n, स्लोप हो गया 1 अपॉन n, ठीक है। याद भी रख सकते हैं log x अपॉन m अगर y एक्सिस पे और x एक्सिस पे log p है, देन यहाँ पे स्लोप होता 1 अपॉन n, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज सेम एज फिजिसॉर्प्शन एट extent of adsorption, at extent of adsorption decreases with an increase in temperature. The extent of adsorption decreases with increase in temperature. Yes, the extent of adsorption increases with increase in surface area of the adsorbent. The extent of adsorption depends on the concentration of solute in solution. X upon m is equals to k c की power 1 upon n, c क्या concentration. The extent of adsorption depends on the nature of adsorbent and the adsorbate. The extent of adsorption x upon m depends on the nature of adsorbent, depends on the nature of adsorbent and the adsorbate. Yes, अब देखते हैं इनमें से कौन सा ग्राफ ट्रू है। तो पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फिर जाके आगे चल के कांस्टेंट हो जाता, तो ये ऑप्शन ही हो गया, ठीक है। अब आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट द सब्सटेंस विच कैन चेंज द स्पीड of reaction without itself undergo any permanent change in mass and composition at the end of reaction. The substance which can change the speed of reaction without itself undergo any permanent change in mass and composition at the end of the reaction. 2 KClO3 हीट केस में तो ये बना 2 KCl प्लस 3O2, 2 KClO3 हीट केस को तो ये बन रहा 2 KCl प्लस 3O2 एट हाई टेम्परेचर। 2 KClO3 यहाँ पे इसको हीट किया और MnO2 के प्रेजेंस में 2 KCl प्लस 3O2, ये लो टेम्परेचर में ही हो गया जब इसमें MnO2 कैटलिस्ट ऐड किए, तो नहीं तो पहले टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा था, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा था, KClO3 को कन्वर्ट किया जा रहा था 2 KCl प्लस 3O2 में, 2 KClO3 को कन्वर्ट किया जा रहा था 2 KCl प्लस 3O2 में। ओके, द टोटल मास ऑफ कैटलिस्ट remains unaffected but its physical state may change. Generally, a catalyst cannot initiate a reaction but not always. Example, H2O2 रूम टेम्परेचर पर तो नो रिएक्शन, H2O2 इसमें Pt जैसे ही ऐड किए तो ये वाटर बन गया, H2Cl नो रिएक्शन, बट इसमें जैसे लाइट पड़ा तो ये HCl में कन्वर्ट हो गया। ओके, positive catalyst which increases the ROR with decreasing activation energy, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता है 2SO2 प्लस O2, वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 2SO3 में, 2SO2 प्लस O2, 2SO2 प्लस O2 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है 2SO3 में, जिसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इधर एनर्जी है y एक्सिस और x एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे जो बीच में हो गया विदाउट कैटलिस्ट, ऊपर इससे ऊपर जा चुका है कौन सा, विथ नेगेटिव कैटलिस्ट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ कर देता है, यस, और डिक्रीज़ कर देता है कौन, विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो यहाँ पे ये नीचे आ चुका है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर देता है, यस। डेल्टा H EP प्रोडक्ट माइनस ER रिएक्टेंट का, EP जो है प्रोडक्ट का वो कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो इसलिए ये नेगेटिव आया, और ये सब में सेम है डेल्टा H इन तीनों केस में, यस। नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर इसे कहते हैं, विच डिक्रीजेज द ROR, विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे 2H2O2 है, यहाँ पे हीट किया और H3PO4 डाले तो ये 2H2O प्लस O2 बना, यहाँ पे ग्लिसरॉल और एसीटनिलाइड THNHCOCS3 ये यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके,
अब देखते हैं ऑटो कैटलिस्ट, द रिएक्शन विच कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट। ऑटो कैटलिस्ट द रिएक्शन विच कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से ये कैटलाइज्ड हो। ऑटो कैटलिस्ट द रिएक्शन विच कैटलाइज्ड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H2, यहाँ पे क्या बना Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2 होता है Mn2 प्लस, ये क्या है ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, promoter enhance the activity of the catalyst, promoter enhance the activity of the catalyst, N2 plus CH2 N2 plus sorry promoter enhance the activity of catalyst, promoter enhance the activity of catalyst के, ठीक है। तो N2 plus 3H2 ये Fe और MO के प्रेजेंस में बनाया 2NH3 जिसे कहते हैं हैबर्स प्रोसेस। तो Fe यहाँ पे क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट, Fe है पॉजिटिव कैटलिस्ट और MO मॉलिब्डेनम है प्रोमोटर, मॉलिब्डेनम MO ये क्या है प्रोमोटर और Fe आयरन क्या है पॉजिटिव कैटलिस्ट। ओके, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, और भी एग्जांपल देखते हैं। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 पॉइजन की तरह यहाँ काम करता है। AS2O3 कैटलिस्ट है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड और PT H2 प्लस O2 पॉइजन CO, इससे ये बनता H2O। रोजनमुंड रिएक्शन, यहाँ पे CO प्लस H2 से बन रहा CO2 प्लस H2, कैटलिस्ट Fe2O3 और पॉइजन है Cr2O3, कैटलिस्ट पैलेडियम पॉइजन BaSO4, हाँ उसमें ये भी रहता ना। देखते हैं पॉइजन ये क्या होता है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, पॉइजन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट BaSO4 इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज होता, तो ये क्या है कैटलिस्ट। अब पॉइजन क्या है BaSO4, यस। यहाँ पे 2 ब्यूटाइलिन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो यहाँ पे जब पॉइजन डाल देते हैं तो ये 2 बॉन्ड नहीं तोड़ता, बस एक ही बॉन्ड तोड़ता, तो ये बनता है यहाँ पर से सिस 2 ब्यूटीन बना CCH3H और डबल बॉन्ड CCH3 और इधर H, तो PD प्लस BaSO4 इसे क्या कहते हैं, ये लिंडार्स कैटलिस्ट है। लिंडार्स कैटलिस्ट सिस अल्कीन बनाने में काम आता, अल्काइन से सिस अल्कीन बनाने में काम आता लिंडार्स कैटलिस्ट PD प्लस BaSO4। ओके, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, होमोजेनस कैटलिस्ट व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, होमो कैटलिस्ट व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, जैसे 2SO2 गैस में प्लस O2 गैस में, NO गैस में है, NO ये क्या है कैटलिस्ट, ये भी गैस में, और इससे बना 2SO3 गैस, लिड चैम्बर प्रोसेस। ओके, फिर CH3COO2H5 पे लिक्विड में प्लस H2 लिक्विड में, HCl यहाँ पे कैटलिस्ट डाले और ये भी क्या है लिक्विड में, बना क्या CH3COH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, C12H22O11 एक्वस ये सुक्रोज है प्लस H2O लिक्विड, इसमें डाले H2SO4 लिक्विड, इससे बना गया C6H12O6 एक्वस ग्लूकोज प्लस C6H12O6 एक्वस फ्रक्टोज। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इनके हेट्रोकैटलिस्ट व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, हेट्रोकैटलिस्ट का तो व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज। एग्जांपल 2SO2 गैस में प्लस O2 ये भी गैस में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये सॉलिड है, इसे बना क्या 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसे ये बन रहा वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में, और वैनेडियम पेंटॉक्साइड ये सॉलिड है, इसकी प्रेजेंस में बना क्या 2SO2 गैस, तो ये सॉलिड था और ये गैस, डेट्स वाई इसे कहते हैं हेट्रोकैटलिस्ट। N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये आयरन जो है ये सॉलिड है कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में ये बना 2NH3 गैस। ठीक है, 4NH3 गैस प्लस 5O2 PT सॉलिड की प्रेजेंस में 4NO प्लस 6H2 बना, ये क्या है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल ये लिक्विड है प्लस H2 गैस है, निकल सॉलिड की प्रेजेंस में ये बनना वेजिटेबल घी सॉलिड, ये क्या हाइड्रोजिनेशन के थ्रू बन रहा। ओके, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये जाके इस पे A B दोनों जाके इसके एक्टिव साइड पे एडजॉर्ब हुआ, फिर ये इंटरमीडिएट बना, पहले अटैच हुआ इससे, ठीक है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बना, A और B के बीच में बॉन्ड बना, और अब धीरे धीरे इससे टूट के हट रहा है, डिसॉर्प्शन। ओके,
ए भी जाके पहले कैटलिस्ट से जुड़ा, फिर ए भी आपस में जुड़ा, फिर अब यहाँ से हट रहा डिसॉर्प्शन, ठीक है। स्टेप 1 एडजॉर्प्शन ऑफ ए एंड बी ऑन कैटलिस्ट। स्टेप 2 interaction between A and B. Step 2 interaction between A and B, intermediate transition state or activated complex. फिर step 3 desorption of AB. Important feature of solid catalyst. Important feature of solid catalyst. Important feature of solid catalyst activity. It depends on strength of chemisorption to the large extent. Important feature of solid catalyst activity. It depends on the strength of chemisorption activity. It depends on strength of chemisorption to the large extent. It depends on strength of chemisorption to the large extent increases ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 के बीच में, और इसमें गुड कैटलिस्ट ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 तक के बीच में रहता, ठीक है। गुड कैटलिस्ट ग्रुप 7 टू ग्रुप 9, ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 मतलब 7, 8, 9 ये गुड कैटलिस्ट है। 5 टू 11 के बीच में काम करता, बट 7, 8, 9 ये तीनों ग्रुप 7, 8, 9 ये तीनों गुड कैटलिस्ट है, ठीक है। सेलेक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट to direct a particular reaction to yield a particular product. Selectivity of catalyst. It is the ability to the catalyst to direct a particular reaction to yield a particular product. जैसे CO गैस प्लस H2 गैस, ये Cu के प्रेजेंस में HCHO गैस बना CO2 प्लस H2. अगर कैटलिस्ट CuZnO Cr2O3 है तो यहाँ पे बना CH3OH. CO गैस प्लस H2 गैस निकल के प्रेजेंस में यहाँ बना CH4 प्लस H2O. तो ए बी ये सब तो सेम था, कैटलिस्ट डिफरेंट डाले तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बना। जैसे पीडब्ल्यू के सारे फैकल्टी सेम है बट स्टूडेंट अलग है, सभी का रिजल्ट अलग आ रहा। यस, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट SSC, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, द कैटलिसिस विच डिपेंड्स अपॉन द catalysis which depends upon pore structure of catalyst and size of reactant and product molecule. The catalysis which depends upon pore structure of catalyst and size of reactant and product molecule. The catalysis which depends upon pore structure of catalyst and size of reactant and product molecule. Zeolite are good shape selective catalyst. SSC, zeolites are good shape selective catalyst because they have honeycomb like structure. हाँ, क्योंकि सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट नहीं था। द कैटलिस्ट विच डिपेंड्स अपॉन पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल. जियोलाइट्स आर गुड SSC सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज दे हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. इसमें रहता क्या क्या है? सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकन. ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन हो गया, सिलिकन एल्यूमिनियम Al माइनस और यहाँ पे Na+ भी आ जाता है कभी कभी. एल्यूमिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकन, ये 4 चीज़ रहता है इसमें. अल्कोहल ROH यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है ZSM5 और ये गैसोलीन में कन्वर्ट करता है CH2N. ZSM जियोलाइट स्कोनी मोबिल. ठीक है, अब देखते हैं एंजाइम कैटलिसिस. एंजाइम आर द कॉम्पोजिशन ऑफ हायर मोलर मास प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय living plants and animals. Enzymes are the composition of higher molecular mass protein. Enzymes are the composition of higher molecular mass protein formed by living plants and animals and catalyze various reactions in the body.
The process is called enzyme catalysis and also termed as biological catalyst. एंजाइम को कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. सुक्रोज C12H22O11. सुक्रोज इनवर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना. यस, सुक्रोज इनवर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना. स्टार्च डायस्टेज के प्रेजेंस में ये माल्टोज बना. स्टार्च डायस्टेज के प्रेजेंस में ये माल्टोज बना. C12H22O11. माल्टोज माल्टीज की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बना. ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में ये इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बना. ग्लूकोज जाइमेज की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बना. ओके. यूरियाज की प्रेजेंस में अमोनिया प्लस CO2 बना. मिल्क लैक्टोबैसिली के प्रेजेंस में ये कट बना. इन स्टोमैक प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में ये पेप्टाइड बना. इन इंटेस्टाइन में प्रोटीन, इस पर पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन पड़ा. देन ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ. ओके. करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालिसिस: highly efficient, highly specific, highly active under optimum pH, 5 to 7, highly active under optimum temperature, 298 to 310 Kelvin. Increasing activity by activator, metal ion, Na plus, Mn2 plus, etc. and coenzyme vitamins. Increasing activity by activator, metal ions, Na plus, Mn2 plus, etc. and coenzymes vitamins. Inhibitors and poisons decrease the activity. जैसे ड्रग्स हाँ डाल दिया जाता तो inhibitors and poisons decrease the activity. Increasing activity by activator, metal ion, sodium, Na plus, Mn2 plus, etc. and coenzymes vitamins. Okay. Mechanism of enzyme catalysis. There are large number of cavities present on the surface of enzymes. There are large number of cavities present on the surface of enzymes. These cavities have characteristic shape and possesses active functional group like NH2, COOH, SHOH, etc. There are large number of cavities present on the surface of enzymes. एंजाइम के surface पे present. ठीक है. These cavities have characteristic shape and possesses active functional group like NH2, COOH, SHOH, etc. The reactant molecules have complementary shape and can fit into those cavities just like lock and key. The reactant molecule have a complementary shape and can fit into those cavities just like lock and key. एंजाइम है, ये हो गया रिएक्टेंट. उसी के पास स्लो एंड रिवर्सिबल. ये एंजाइम, इसके ऊपर ये रिएक्टेंट. आर ई कॉम्प्लेक्स फास्ट और रिवर्सिबल. फास्ट और ये इरिवर्सिबल है क्योंकि अब ये प्रोडक्ट बन चुका है. आर ई कॉम्प्लेक्स में ना कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये फास्ट और इरिवर्सिबल. ये एंजाइम से अलग हो गया और ये दो प्रोडक्ट बन गया. ओके. सबसे पहले रिएक्टेंट एंजाइम से कंबाइन करता है, आर ई कॉम्प्लेक्स बनता है, देन फिर ये प्रोडक्ट बना प्लस एंजाइम से अलग हो गया. First step is slow and reversible. Second step is fast and irreversible. A catalyst poison render the catalyst inactivate because it is preferably adsorb on the catalyst. अच्छा. A catalytic poison render the catalyst ineffective because it is preferably adsorb on the catalyst. सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या है? जियोलाइट. ओके. अ कैटलिस्ट इज द फाइनली डिवाइडेड form in most effective because more active sites are formed. In Haber's process, the hydrogen is obtained by reacting methane with steam in NiO as a catalyst. The process is known as steam reforming. In Haber's process, hydrogen is obtained by reacting
Hydrogen is obtained by reacting methane. Hydrogen is obtained by reacting methane with steam in NiOS catalyst. The process is known as steam reforming. Why is it necessary to remove CO when ammonia is obtained by Haber's process? N2 plus CH2 Fe और molybdenum के प्रेजेंस में ये बना 2NH3 Haber's process. स्टीम रिफॉर्मिंग रिएक्शन CH4 प्लस H2O, ये NiO के प्रेजेंस में CO प्लस 3H2 बनता है. ठीक है. CO एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट. अच्छा, इसलिए CO को हटाना पड़ता है. CO एक्ट एज पॉइजन फॉर कैटलिस्ट. Why is the ester hydrolysis? Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and becomes faster after some times? Why is the ester hydrolysis? Why is the ester hydrolysis slow in the beginning and faster after some time? क्योंकि RCO R- प्लस H2O जो है एसिडिक मीडियम में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बन गया. यस. और स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा है R-OH के प्रेजेंस में. ठीक है. अब देखते हैं colloids और सोल. colloids और सोल. colloids are heterogeneous system. colloids are heterogeneous system in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम जो कि सॉल्वेंट है. ठीक है. फिर डिस्पर्स फेज जो कि सॉल्यूट है. डिस्पर्स्ड फेज जो कि ये सॉल्यूट है और ये डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट. ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड और सस्पेंशन. पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 mm. ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 mm. पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर. पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर. कोलॉइड्स का 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर और सस्पेंशन का मोर देन 1000 नैनोमीटर. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. फर्स्ट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट बिटवीन dispersion phase and dispersion medium. Second, based on nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium. सबसे पहला हो गया based on physical state between dispersed phase and dispersed medium. Second, based on nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium. Third, based on types of particles of dispersed phase and dispersed medium. सबसे पहला देखते हैं based on physical type. 8 types का है टोटल, क्योंकि गैस और गैस जब मिल जाता तो ये तो होमोजेनियस ही हो जाता. डेट्स वाई 80 टाइप्स है, नहीं तो 9 पढ़ते हैं. यस. डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलॉइड. फिर एग्जांपल्स देखेंगे. ओके. डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम पूरा मीडियम क्या है सॉलिड, तो ये सॉलिड बनता है सॉलिड सोल. एग्जांपल सम कलरफुल ग्लासेस एंड जेमस्टोन. ओके. डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड है और मीडियम ये पूरा क्या है लिक्विड, तो इसे कहते हैं सोल. एग्जांपल पेंट और सेल्फ फ्लूइड, सोल इसे कहते हैं. ठीक है. फिर डिस्पर्स फेज ये सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम गैस है, इसे कहते हैं एरोसोल. स्मोक, डस्ट, स्टॉर्म. ओके. डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है. एग्जाम्पल इसे कहते हैं जेल. एग्जाम्पल हो गया चीज़, बटर, जेलीज, कर्ड. ओके. डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, इसे कहते हैं इमल्सन. मिल्क, हेयर क्रीम. ओके. डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम गैस है, इसे भी कहते हैं एरोसोल. फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे. ओके. डिस्पर्स्ड फेज ये गैस है, डिस्पर्सन मीडियम ये सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम ये सॉलिड है, तो बना क्या सॉलिड सोल. प्यूमिस स्टोन, फोम रबर. ओके. डिस्पर्सन फेज था ये गैस और यहाँ ठीक है फोम रबर. प्यूमिस स्टोन. अब देखते हैं डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है और इसमें ये गैस, तो ये इसे कहते हैं फोम. फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप लेदर. ओके. अब आता सेकेंड टाइप्स.
based on nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. लायोफिलिक और लायोफोबिक. लायो मीन्स हो गया सॉल्वेंट और फिलिक मतलब हो गया लविंग, सॉल्वेंट लविंग. लायोफोबिक, लायो मीन्स हो गया सॉल्वेंट, फोबिक मतलब हेटिंग. ठीक है. जब डिस्पर्सन लायोफिलिक, लायोफिलिक में क्या होता है, डिस्पर्सन फेज लव्स डिस्पर्सन मीडियम, और लायोफोबिक में डिस्पर्सन फेज हेट डिस्पर्सन मीडियम. देखते हैं लायोफिलिक कैसा है. दिस सोल आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. ओके. और फिर लायोफोबिक, ये लायोफिलिक था. फोबिक प्रिपेयर्ड बाय सम स्पेशल मेथड. ओके. लायोफिलिक ये रिवर्सिबल है, लायोफोबिक ये इरिवर्सिबल. लायोफिलिक स्टेबल ड्यू टू सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. हाँ, ये प्यार से रह रहा तो अच्छे से आराम से स्टेबल है ड्यू टू सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. बट लायोफोबिक ये अनस्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू. हाँ, ये तो हो गया. हाँ ठीक है. फिर लायोफिलिक, लायोफिलिक विस्कोसिटी इज ग्रेटर दैन डिस्पर्सन मीडियम. विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज ग्रेटर दैन डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्सन, हाँ अब ये भी डिजॉल्व हो गया तो विस्कोसिटी तो बढ़ ही जाएगी, गाढ़ापन उसका अब ज़्यादा बढ़ चुका है. विस्कोसिटी इज ग्रेटर दैन डिस्पर्सन मीडियम. हाँ, और फिर लायोफोबिक में विस्कोसिटी इज सेम एज दैट डिस्पर्सन मीडियम. ओके. लायोफिलिक में सरफेस टेंशन इज लेसर देन, सरफेस टेंशन इज लेसर देन डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्सन मीडियम से अब सरफेस टेंशन कम हो चुकी है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ मिला है. हाँ, और यहाँ पे डिस्पर्सन और यहाँ पे सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट डिस्पर्सन मीडियम. ओके. लायोफिलिक एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन, गम एट्सेट्रा. लायोफिलिक, लायोफिलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन, गम, स्टार्च, सेलुलोज, जिलेटिन, गम एट्सेट्रा. और फिर लायोफोबिक एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मेटल, मेटल सल्फाइड. ये तो ऐसे भी नहीं जल्दी डिजॉल्व होता, तो मेटल, मेटल सल्फाइड एट्सेट्रा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अब देखते हैं थर्ड आता बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम. स्मॉल, लार्ज और मिसल्स. स्मॉल और कोलॉइडल रेंज कितना होता है 1 to 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर. ठीक है. 3 टाइप के इसमें पड़ते हैं, स्मॉल, लार्ज और मिसल्स. मल्टी मॉलिक्यूलर फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट है मल्टी मॉलिक्यूलर, सेकेंड है मैक्रो मॉलिक्यूलर. मल्टी मॉलिक्यूलर on dissolution atoms or smaller molecules are aggregate together to form a species having a size in colloidal range. Multimolecular, multimolecular on dissolution atoms or smaller molecules on dissolution atoms or smaller molecules are aggregate together to form a species having size in colloidal range. Multimolecular or macromolecular. Multimolecular on dissolution atoms or on dissolution atoms or smaller molecules are aggregate together on dissolution is atoms or small molecules are aggregate together to form a species having size in colloidal range. Example AU copper, सॉरी कॉपर नहीं, सल्फर सोल और गोल्ड सोल. मल्टी मॉलिकुलर में आता सल्फर सोल और कॉपर सोल. ऑन डिसोल्यूशन एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर aggregate together to form a species having size in colloidal range, having size in colloidal range. Example gold soul or sulfur soul. Macromolecules, macromolecules like proteins and polymers are aggregated together to form a species having size in colloidal range. Multimolecules like protein and polymers are aggregated together to form a species having size in colloidal range. Macromolecules like proteins and polymers get aggregated together to form a species having size in colloidal range. Example, यहाँ पे प्रोटीन और पॉलीमर्स को एग्रीगेट किया गया तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन और पॉलीमर्स को एग्रीगेट किया जा रहा तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एटम्स और
स्मॉलर है तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर में सल्फर सोल और कॉपर सोल, और फिर मैक्रो में प्रोटीन और पॉलीमर्स एग्रीगेट हुआ है। तो यहाँ पे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, पॉलीमर, पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर एटसेट्रा। ओके, associated colloids, missile formation. Some substance at lower concentration behave as normal strong electrolyte but exhibit colloidal behavior at higher concentration. Some substance at lower concentration behave as normal strong electrolyte but exhibit colloidal behavior at higher concentration. Some substance at lower concentration behave as normal strong electrolyte but some substance at lower concentration behave as normal strong electrolyte but exhibit colloidal behavior at high concentration. It aggregate thus formed is called micelles. The micelles are formed above a particular temperature and concentration 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 m. Critical micelle concentration. The concentration above which micelles are formed 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 m. Craft temperature T K से रिप्रेजेंट करते हैं इसे. The temperature above which micelles are formed room temperature ये ठीक है. Mechanism of micelle formation. Soap consists of salt of fatty acid. Soap consists of salt of fatty acid. Sodium citrate C17S35CONa. ये बना क्या? C17S35CO minus plus Na plus. Sodium citrate C17S35CONa. C17S35CO minus plus Na plus. Soap consists of salt of fatty acid. Yes, अब देखते हैं. Soap has two parts. Long hydrocarbon tail C17S35. Long hydrocarbon tail C17S35. ये क्या? हाइड्रोफिलिक टेल और यहाँ पे हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफिलिक हेड CO माइनस हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल. हाइड्रोफिलिक हेड CO माइनस और हाइड्रोफोबिक टेल. यहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल है. ये क्या चीज़ का बना है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल C17S35. ये नीचे में नेगेटिव है और फिर चारों ये नेगेटिव हो गया और ये टेल, सारा टेल इसका बीच में आ जाता और नेगेटिव चारों बगल सरफेस के पास आ जाता, मिसल्स फॉर्म कर लेता. ऐसा क्यों होता? क्योंकि नेगेटिव ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हेयर टेल ये हाइड्रोफोबिक था इसलिए. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ सोप. Cleansing action of soap. Soap molecules form micelles in oil droplets in such a way that hydrophilic part is present at the hydrophobic part is present in the droplet and hydrophilic part away from oil droplet. Hydrophilic part away from oil droplet और hydrophobic part present inside the. ठीक है. अब देखते हैं. फिर आया ये बनाया ड्रॉपलेट और फिर यहाँ से हटा देते, पानी डालते हैं तो ये हट जाता है. ओके. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड. केमिकल मेथड AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3 प्लस 3H2S आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता एंड आर्सेनिक सल्फाइड बनता येलो सोल. आर्सेनिक सल्फाइड बना येलो सोल प्लस 3H2O. ओके. SO2 प्लस 2H2S. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ एंड देन ये सल्फर सोल बना S0 और ये प्लस H2O. ठीक है. फिर AU2AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O
यहाँ पे रिडक्शन हुआ और ये गोल्ड सोल बना, गोल्ड सोल बना, रिडक्शन हुआ, गोल्ड सोल बना। ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे बनता सल्फर सोल, SO2 में पहले प्रेजेंट था और यहाँ पे H2S था, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके बना सल्फर सोल S, ठीक है। और यहाँ पे रिडक्शन होके बनता है गोल्ड सोल, AuCl3, यहाँ पे ये +3 में रिडक्शन हुआ, ये 0 में आया, ठीक है। और ये बना क्या, गोल्ड सोल +3 HCOH +6 HCl, ठीक है। FeCl3 +3H2, FeCl3 +3H2, हाइड्रोलाइसिस और ये बना FeOH होल 3 रेड सोल +3 HCl, FeCl3 +3 H2 हाइड्रोलाइसिस, FeCl3 +3 H2, FeCl3 +3 H2 यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुआ एंड देन ये बना FeOH होल 3, FeOH होल 3 रेड सोल बना +3 HCl, FeOH होल 3 रेड सोल प्लस HCl बना FeOH होल 3 रेड सोल बना +3 HCl। आर्सेनिक सल्फाइड येलो सोल AS2S3, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ था, आर्सेनिक सल्फाइड बना येलो सोल, ठीक है। फिर उसके बाद सल्फर सोल बना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन के बाद बना गोल्ड सोल बना रिडक्शन के बाद। FeCl3 हाइड्रोलाइसिस के बाद बना FeOH होल 3 रेड सोल। हाइड्रोलाइसिस के बाद ये बनता है FeOH होल 3 रेड सोल। हाइड्रोलाइसिस के बाद बना FeOH होल 3 रेड सोल, ठीक है। रिडक्शन के बाद बना यहाँ पे गोल्ड सोल, ऑक्सीडेशन के बाद बनता है सल्फर सोल, डबल डिकम्पोजिशन के बाद बनता है आर्सेनिक सल्फाइड सोल येलो सोल, ओके। अब देखते हैं ब्रेडी आर्क मेथड और इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन used for the preparation of copper, silver, gold, platinum, etc. ये हो गया मेटल रॉड है, ये हो गया इलेक्ट्रोड। डिस्पर्सन मीडियम, ये होगा डिस्पर्सन मीडियम, यहाँ पे हो गया आइस बाथ, यहाँ पे आइस बाथ है और यहाँ हो गया डिस्पर्सन मीडियम और ये हो गया मेटल रॉड इलेक्ट्रोड। used for the preparation of copper, silver, gold, platinum, used for preparation of copper, silver, gold, platinum, etc. Used for preparation of copper, silver, gold, platinum, etc. It involves dispersion as well as condensation. It is the method of electric spark is struck between. It is the method. In this method, an electric spark is struck between electrode. In this method, an electric spark is struck between electrode immersed in dispersed medium. The intense heat produced vaporize the metals, which then condense to form particle of colloidal size. Peptidization process of converting PPT into a colloidal solution in presence of a peptizing agent with dispersed medium. Process of converting PPT into peptidization process of converting PPT into colloidal solution in the presence of a peptizing agent with a dispersed medium. Process of converting PPT into colloidal solution in the presence of a peptizing agent with a dispersed medium. During peptidization,
During peptidation, the PPT adsorb on the ions using common ion on its surface. This causes the development of charge, either positive or negative. Peptidation is process of converting PPT into colloid. Process of converting PPT into colloidal solution. PPT into colloidal solution in the presence of peptidizing agent. ठीक है, with dispersed medium. During peptidation, the PPT adsorb one of the ions, usually common ions, on its surface. This causes development of charge, either positive or negative. Example, when Ki is mixed with excess AgNO3. When Ki is mixed with excess AgNO3, Ki plus AgNO3 excess में AgI प्लस KNO3 बना, AgI प्लस KNO3 बना, एक्सेस में क्या है AgNO3, तो ये बना क्या AgI, ये AgI इसके चारों बगल Ag प्लस आके लगा. हाँ, क्योंकि इसका सेम वाला आता है, इसमें सेम, इन दोनों में क्या था Ag सेम था AgI में, तो Ag आके एड्सॉर्ब हो गया. ओके, तो ये बना पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड. ठीक है, व्हेन AgNO3 is mixed with excess Ki, then AgNO3 और ये मिल के क्या बना AgI का PPT बना, येलो PPT. ओके, अब एक्सेस में क्या है Ki, तो इसमें साथ में कॉमन आयन क्या है I माइनस, तो I माइनस आके एड्सॉर्ब हो गया, नेगेटिव चार्ज्ड कॉलॉइड बनाया. ओके, क्रिस्टलॉइड्स डिफर फ्रॉम कॉलॉइड मेनली इन रिस्पेक्ट टू पार्टिकल साइज. ओके, क्रिस्टलॉइड ट्रू सॉल्यूशन को कहते हैं. ओके, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल. सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज लायोफिलिक जो, हाँ, तो लोअर देन वाटर. हाँ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, कम हो जाता है. विच ऑफ, क्योंकि दूसरा भी मॉलिक्यूल इसमें, दूसरे नेचर का भी मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो चुका है, इसलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग लायोफिलिक सोल. Which of the following is not used in preparing lyophilic soul? Not preparing. Starch, gum, gelatin, हाँ, ये सब तो लायोफिलिक है. नॉट लायोफोबिक वाला मतलब मेटल सल्फाइड. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायोफिलिक? गम. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटेड कॉलॉइड? एसोसिएटेड कॉलॉइड मतलब मिसल्स. सोप इन वाटर. ठीक है. फॉग is an example of a colloidal system of liquid in gas. Fog, liquid in gas. ठीक है. Arsenous sulfide soul is prepared by passing H2S through arsenous oxide solution. The charge developed on the particle is due to adsorption of. सोल किसका बना है? आर्सेनस सल्फाइड का. ठीक है. पासिंग किए थे H2S थ्रू आर्सेनस ऑक्साइड में, तो ये बना क्या H2S2. पास क्या किए H2S, मतलब एक्सेस में क्या है AS2O3, क्योंकि तो बस थोड़ा सा पास किया H2S, तो ये बना क्या इसके ऊपर S माइनस आके एड्सॉर्ब हुआ था S माइनस. ओके, अब देखते हैं peptidation involves integration. अच्छा, यहाँ पे आर्सेनस ऑक्साइड था ना, passes H2S through arsenous oxide, preparing by passing H2S through arsenous oxide. तो यहाँ पे S2 माइनस AS2 माइनस, ये आर्सेनिक सल्फाइड जो था येलो सोल था. हाँ, तो इसके ऊपर क्या आके अटैच होगा? पास किया गया H2S थ्रू आर्सेनस ऑक्साइड. द चार्ज डेवलप ऑन द पार्टिकल्स. आर्सेनस सल्फाइड H2S मतलब एक्सेस में. हाँ, पासिंग थ्रू आर्सेनस सॉल्यूशन. H2S पास करते जा रहा है, मतलब H2S ज़्यादा, तो यहाँ पे इसलिए S2 माइनस लिया गया. The formation of a colloid from suspension is peptidation. The formation of colloid from suspension is peptidation.
The formation of colloid from suspension is called peptidization. पीपीटी से colloid बनाया गया, इसको तो कहते हैं peptidization. Yes. When the dispersion medium is alcohol, the colloidal when the dispersion medium is alcohol, ठीक है, the colloidal sol is known as alcohol. Peptidization and study example, PeCl3 is added to excess. PeCl3 is added to excess of hot water. FeCl3 plus H2O hot. Fe2O3 डॉट एक्स H2O, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल जब बनता है, देन यहाँ पे Fe3 प्लस आके एडसॉर्ब हुआ. ओके, फिर व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू NaOH, जब NaOH के साथ किए, जब पानी के साथ किए तो यहाँ पे Fe3 प्लस आके इसके साथ एडसॉर्ब हुआ तो पॉजिटिव चार्ज्ड सोल बनाया. ओके, और जब FeCl3 प्लस NaOH है, देन यहाँ पे Fe2O3 डॉट एक्स H2O, इसके पर OH माइनस, ये नेगेटिव चार्ज्ड सोल बनाया. ठीक है, जब NaOH के साथ डालें. Helmholtz electrical double layer silver nitrate is mixed with excess Ki. Silver nitrate AgNO3 plus Ki, एक्सेस में Ki है. ठीक है, AgNO3 प्लस Ki एक्सेस में, इसे ये बना AgI. जो एक्सेस में डिपॉजिट तो वही होता, तो यहाँ पे I माइनस का एडजॉर्ब हुआ, तो फर्स्ट लेयर एडजॉर्प्शन लेयर ये फिक्स्ड रहता है. ठीक है, फिर उसके बाद डिस्पर्सन मीडियम जिस भी चीज़ का रहता है, जैसे Ki का है, देन यहाँ पे K प्लस, ये सेकेंड लेयर बनता है, जिसे अट्रैक्शन लेयर और मूविंग लेयर और मोबाइल लेयर और डिफ्यूज़न लेयर कहते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, excess silver nitrate is mixed with Ki. Excess silver nitrate is mixed with Ki. AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस में प्लस Ki, देन बना AgI और एडसॉर्ब क्या हुआ Ag, और मीडियम था Ki का तो Ag प्लस आया, तो यहाँ पे Ki माइनस आया. ओके, एडसॉर्प्शन होगा जो एक्सेस में है उसके कॉमन आयन से. ठीक है, और फिर एट्रैक्शन होगा डिस्पर्सन मीडियम से. Okay, the combination of first and second layer is called Helmholtz electrical double layer. Zeta potential or electrokinetic potential. Zeta potential or electrokinetic potential. The potential difference between first and second layer is called zeta potential. The difference between first layer and second layer is called zeta potential. Purification of colloid. Purification, the process of removal of impurities from colloidal solution is called purification. The process of removal of impurities from colloidal solution is called purification. Colloid plus true solution, यहाँ से true solution को removal किया गया, ये जो colloid बना है. First dialysis, the apparatus used for the process is called dialyzer. The process of removal of impurities from colloidal via diffusion through membrane is called dialysis. Membrane, animal membrane, bladder, parchment paper, cellophane sheet. इधर से वाटर डालते जा रहे हैं. ओके, ये क्या डायलिसिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्रिस्टलॉइड है ट्रू सॉल्यूशन का, पे सोल पार्टिकल्स है, यहाँ से निकला, और फिर वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड यहाँ बाहर. ओके, electrodialysis. The process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying electric field. तो इधर एनोड और इधर कैथोड से ऐसे अटैच कर दिया गया. ओके, यहाँ से पानी डाला जाए और इधर वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट आ रहा. ये यहाँ पे सोल पार्टिकल्स है और क्रिस्टलॉइड इससे बाहर आते जा रहे हैं. ये डायलाइसिंग मेम्ब्रेन है. ओके, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला जो है वो आ रहा है एनोड की तरफ और पॉजिटिव वाला जा रहा है कैथोड की तरफ. ओके, हम देखते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन. इन दिस मेथड अ स्पेशल फिल्टर पेपर इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज. In this method, a special filter paper is used for removal of impurities. A special filter paper is made by soaking the filter paper in colloidal solution, hardening by HCHO and finally dried. Hardening by HCHO aldehyde and finally drying it. तो collodion ये क्या है 4% solution of nitrocellulose, 4% solution of nitrocellulose with mixture of alcohol and ether. 4% nitrocellulose with mixture of alcohol and ether. 4% solution of nitrocellulose with mixture of alcohol and ether. Okay, properties of colloids.
Properties of colloids. Colligative property. Properties of colloids. Colligative property. The colligative property are of small order as compared to true solution at the same concentration. Colloid. Colligative property. Colligative property. The colligative property are of small order. Colligative property. The colligative property are of small order as compared to true solution at the same concentration. Colligative property. The colligative property are of small order as compared to the colligative property are of small order as compared to true solution at same concentration. Particle size कोलॉइडल का ज़्यादा होता ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन, और तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कोलॉइड का कम हो गया ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. यस. टिंडल इफेक्ट. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. लाइट सोर्स, यहाँ पे लाइट सोर्स है. ओके ये टिंडल कोन बनाया, लाइट सोर्स यहाँ से लाइट निकला, ये टिंडल कोन बनाना, फिर उसके बाद ये कोलॉइडल सॉल्यूशन में गया, पार्टिकल से टकराया एंड देन स्कैटर्ड लाइट स्कैटर्ड किया. यहाँ पे स्कैटरिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. स्कैटरिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड. Scattering power is inversely proportional to wavelength of light used. Scattering power is inversely proportional to wavelength of light used. Scattering power is inversely proportional to wavelength of light used. Okay. Tyndall effect is observed when the diameter of dispersed particle is not much smaller than the wavelength of light used. Refractive index of dispersion phase and dispersed medium differ greatly in magnitude. Okay. स्कैटरिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. हाँ, जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा तो ज़्यादा टकरा के स्कैटर करेगा. द साइज ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड इज मोर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड इज मोर देन दैट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड. साइज ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड इज मोर देन दैट ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड. Size of lyophobic colloid is more than that of lyophilic colloid. Due to above reason, lyophobic shows more Tyndall effect as compared to lyophilic solution. Why sky or sea water looks blue in color? जैसे विबग्योर में अगर देखें तो कम जब होगा, हाँ, क्योंकि लैम्डा के साथ अगर लैम्डा कम होगा मतलब वेवलेंथ कम होगा तो ही स्कैटरिंग पावर्स का ज़्यादा होता. तो फिर ब्लू लाइट जो है यहाँ पे ब्लू कलर का लैम्डा लेस है, स्कैटरिंग पावर मोर है. वी सी स्काई ब्लू इन कलर. ठीक है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इज प्रिपेयर्ड बाय जिंक्स मॉन्डे in 1903. It does not give any information about particle size and shape. Tyndall effect is used to distinguish between a true solution and colloid. Okay, the color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered. The color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered. And the color of colloidal solution depends on the color of colloidal solution depends on the color of colloidal solution depends on the wavelength of light scattered. The wavelength depends on size and nature of dispersed particle. Brownian movement. The
continuous zigzag motion of colloidal particles by the unbalanced bombardment of particles of dispersion medium. The continuous zigzag motion of colloidal particles by the unbalanced bombardment of particles of dispersion medium. Smaller the size and viscosity of solution. Smaller the size and viscosity of solution, faster is the movement. Smaller the size and viscosity of solution. Smaller the size and viscosity of solution, faster is the movement. Smaller the size and viscosity of solution, faster is the movement. Yes, it produces a stirring effect due to which PPT does not occur which stabilize colloid. The motion is independent of nature of colloid. We can find Avogadro number with the help of Brownian motion. Charge on colloid, positively or negatively. Positively, metal oxide and hydroxide, metal oxide and hydrated metal oxide. मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, ये पॉजिटिवली में आता, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. पॉजिटिवली में आता मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड TiO2 Al2O3.XH2O CrO3.XH2O Fe2O3.XH2O. ठीक है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड. और नेगेटिवली में आता मेटल एंड मेटल सल्फाइड. ऐसे याद रखते हैं, यहाँ पे सल्फाइड आ जाता तो सल्फाइड क्या होता है S2-, तो मेटल और मेटल सल्फाइड ये नेगेटिवली में आया. और फिर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड ये पॉजिटिवली में आता. मेटल सल्फाइड नेगेटिव में. मेटल में हो गया Ag मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम. और मेटल सल्फाइड में आर्सेनिक सल्फाइड Sb2S3 और फिर कैडमियम सल्फाइड हो गया CdS. ठीक है, एसिडिक डाई ईओसिन कॉन्गो रेड एसिडिक डाई ये आता नेगेटिवली में. हाँ, मेटल्स ऐसे भी याद रख सकते हैं. मेटल्स यहाँ पे एसिडिक डाई में आ रहा है मेटल्स और मेटल सल्फाइड है. यहाँ पे एसिडिक डाई आ रहा है ईओसिन और कॉन्गो रेड. पॉलीसेकेराइड स्टार्च गम जिलेटिन ये भी नेगेटिवली में आता. क्ले चारकोल ब्लड ये नेगेटिव में आ रहा. प्रोटीन एंड बेसिक मीडियम सोल ऑफ स्टार्च जिलेटिन क्ले चारकोल ये सब नेगेटिवली में. पॉजिटिवली में मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रेटेड. और फिर मेटल ऑक्साइड जो बनाता है इधर और मेटल हाइड्रोक्साइड ये क्या है बेसिक है, तो बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू हाइड्रोक्साइड FeOH3 ये भी पॉजिटिवली है. ठीक है, और फिर FeOH3 ये पॉजिटिवली है. बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू ये भी पॉजिटिव है. मिथाइलिन ब्लू पॉजिटिवली है. ओके, हीमोग्लोबिन ब्लड ये भी इसमें आता, हीमोग्लोबिन आता है क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन Fe2+ होता है तो ये पॉजिटिवली में आया. प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम ये आता पॉजिटिवली में. ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. The movement of colloidal particles under an electric field is called electrophoresis. The existence of a charge is confirmed by electrophoresis. इधर कैथोड है और इधर एनोड है. ठीक है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है तो ये जो नेगेटिव वाला है ये वाटर का डिस्पर्सन मीडियम. ये नेगेटिव वाला सब कहाँ जा रहा, पॉजिटिव की साइड. ओके, कोलॉइडल सॉल्यूशन हो गया ये. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस व्हेन movement of colloidal particles is prevented by some suitable means. It is observed that dispersion medium begin to move in presence of electric field. Electroosmosis when movement of colloidal particles is prevented by some suitable means. When movement of colloidal particles is prevented by some suitable means. It is observed that dispersion medium begins to move. In presence of electric field.
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, व्हेन मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सूटेबल मीन्स, ठीक है। फिर इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्पर्सन मीडियम, अच्छा डिस्पर्सन मीडियम बिगिंस टू मूव इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब आता है कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन, कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन और प्रेसिपिटेशन। The setting of colloidal particles, the setting of colloidal particles, IEPPT of colloidal particles is called coagulation. The setting of colloidal particles, IEPPT of colloidal particles is called coagulation. Coagulation or lyophobic coagulation of lyophobic soil can be carried out. Lyophilic तो है the lyophobic coagulation of lyophobic soil can be carried out by following method: electrophoresis, mutual coagulation by heating, prevent dialysing by adding of electrolyte. इसे हम लोग किससे पढ़ते हैं, हार्डे एक्सक्लूज रूल से पढ़ते हैं। कोगुलेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन हार्डे एक्सक्लूज रूल, ये क्या है, कोगुलेटिंग पावर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ आयन। Coagulating power depends on coagulating power depends on coagulating power depends on magnitude and sign of ions. Coagulating power depends on magnitude and sign of ions. Coagulating power is directly proportional to valence of ion. Coagulating power depends on magnitude and sign of ion. Coagulating power depends on magnitude and sign of ions. Coagulating power depends on magnitude and sign of ions. Coagulating power depends on magnitude and sign of ions. Coagulating power is directly proportional to valence of ion, मतलब magnitude of charge, ठीक है। For coagulation of positive soul, हम इसमें डालते हैं FeCN6 माइनस, इसका सबसे ज़्यादा रहता है, इससे कम रहता है PO4 3 माइनस का, इससे कम है 4 2 माइनस, इससे कम Cl माइनस। फॉर कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, ओके। फॉर कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सोल तो इसमें पॉजिटिव चीज़ डालेंगे, Al3 प्लस Mg2 प्लस Na प्लस, ओके। हाई कोगुलेटिंग पावर high means less amount of ion or electrolyte is required for coagulation. Coagulating or floating value. Coagulating or flocculating value. The minimum concentration of the electrolyte is needed to cause coagulation of 1 liter solution into R. दूसरा definition इसका, it is defined as the millimoles of coagulating agent. It is defined as the millimoles of coagulating agent required to coagulate per liter of coagulation. Millimoles of coagulating agent. It is defined as millimoles of coagulating agent required to coagulate per liter of colloidal solution. It is defined as the millimoles of coagulating agent. It is defined as the millimoles of coagulating agent required to coagulate per liter of colloidal solution. It is defined as the millimoles of coagulating agent required to coagulate per liter of colloidal solution. It is defined as the millimoles of coagulating agent. It is defined as the millimoles of coagulating agent required to coagulate per liter of colloidal solution. 1 liter कोलॉइड सोल को पीपीटी बनाने के लिए जितना मिलीमोल यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। 1 लीटर कोलॉइड सोल को पीपीटी बनाने के लिए जितना मिलीमोल यूज़ करते हैं उसी को कहते हैं कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग वैल्यू। हाँ, जितनी उसकी ज़्यादा पावर होगी उतनी कम लगेगी। यस, आर्सेनिक सल्फाइड अगर देखें तो ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड इज अ नेगेटिव कोलॉइड। हाँ, मेटल सल्फाइड नेगेटिव कोलॉइड होता है, ठीक है। Which of the following electrolyte will be most effective in coagulation of negative soul?
which of the following electrolyte will be most effective? Which of the following electrolyte will be most effective in coagulation of negative soul? Which of the following electrolyte which of the following electrolyte will be most effective coagulation negative soul? नेगेटिव सोल तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव में जिसका सबसे ज़्यादा Mg2+. ओके, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू काउज coagulation of soul is known as coagulating value. हार्डे excludes law. ये क्या बोले थे? द आयंस कैरिंग मोर ऑपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ सोल पार्टिकल्स आर इफेक्टिव इन कोगुलेशन. यस, अब जैसे गोल्ड सोल है तो क्योंकि सबसे जल्दी से किसका हो जाएगा? गोल्ड सोल. ये मेटल है, मेटल क्या होता है? नेगेटिव सोल बनाता है ये, मतलब पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव Al3+ सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे पहले काम करेगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम फॉक्यूलेशन वैल्यू फॉर पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव चाहिए, तो FeCN6 होल 4-, ये हो जाएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाइएस्ट कोगुलेटिंग पावर फॉर FeOH होल 3? ये पॉजिटिव सोल है, मतलब इसके लिए नेगेटिव चाहिए, तो PO4 3- सबसे ज़्यादा है, तो नेगेटिव यही है. ओके. आर्टिफिशियल रेन इज caused by spraying opposite charged colloid dust over a cloud. Opposite charged colloid dust over a cloud. Okay. Electroosmosis is observed when dispersion medium particles begin to move in an electric field. electroosmosis is observed when dispersion medium, हाँ मीडियम का ही पार्टिकल्स मूव करता है. मीडियम पार्टिकल्स being to move in an electric field. जैसे आप ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में ये, ठीक है. और इलेक्ट्रोफोरेसिस में द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज कंफर्म्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. और अगर मीडियम अगर मूव करता है मीडियम का इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में डिस्पर्सन मीडियम बिगिंस टू मूव इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. और देखते हैं असोल. एक क्वेश्चन है, असोल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन इन KI. तो क्या बना? AgI बना. ओके. एक्सेस में क्या है? Ag, तो यहाँ पे Ag डिपॉजिट होगा. द चार्ज लाइकली टू बी डेवलप्ड ऑन द कोलॉइडल. कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? तो Ag+, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ. ओके. कोगुलेशन और लायोफिलिक सॉल्यूशन. देयर आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग. स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स, चार्ज एंड सॉल्वेशन. Coagulation can be done by adding electrolyte and by adding suitable solvent. Coagulation can be done by adding electrolyte and by adding suitable solvent. Coagulation can be done by adding electrolyte and by adding suitable solvent. Protection of lyophilic colloid. Lyophilic colloids are more stable. Protection of lyophobic का प्रोटेक्शन करना है. Lyophilic colloids are more stable than lyophobic colloid due to extensive hydration. When lyophilic colloid is added to lyophobic colloid, when lyophilic colloid is added to lyophobic colloid, it will forms a layer around the lyophobic colloid to protect from electrolyte. Lyophobic colloids are known as protective colloid. Lyophilic colloid is known as protective colloid. हाँ, क्योंकि वो lyophobic को बचा रहा इलेक्ट्रोलाइट से. जैसे यहाँ 1 ml of 10% NaCl, 1 ml of 10% NaCl इसमें ऐड करते हैं, तो ये गोल्ड सोल जो है, जो कि नेगेटिव सोल है, 10 ml का, इसके ऊपर लायोफिलिक सोल डाला गया. अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल इन mg में देखते हैं.
गोल्ड नंबर, ये क्या है? गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर होता है मिलीग्राम्स, मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड, मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलोइड, milligram of lyophilic colloid, which is just sufficient to prevent coagulation of 10 ml of red gold sol after addition of 1 ml of 10% NaCl solution. Milligram of lyophilic colloid, milligram of lyophilic colloid, milligram of lyophilic colloid, which is just sufficient to prevent coagulation of 10 ml 10 ml of red gold sol after addition of 1 ml of 10% NaCl solution. Okay, gold number is equals to 10 into mass of lyophilic sol upon volume of lyophobic solution in ml. Protective power is inversely proportional to gold number. इमल्सन क्या होता? लिक्विड लिक्विड, इससे पहले ये देख लेते हैं. 0.1 mole electrolyte is used for coagulation of 100 ml solution. What is the coagulating value? Coagulating value मिलीमोल्स के लिए निकालते थे ना, ठीक है. तो फिर 0.1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड फॉर coagulation of 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो 100 ग्राम कोलोइडल सॉल्यूशन, 100 ग्राम कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए 0.1 मोल कोagulating वैल्यू, ठीक है. व्हाट इज़ द कोagulating वैल्यू? कोagulating वैल्यू ये फाइंड आउट करते हैं 1000 ml के लिए. क्यों? यहाँ पे जो था मिली कोगुलेटिंग पूछा क्या है? कोगुलेटिंग वैल्यू. और फिर कोगुलेटिंग वैल्यू इट इज़ डिफाइंड एज द मिलीमोल्स ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट पर लीटर. अच्छा, पर लीटर के लिए फाइंड आउट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द मिलीमोल्स ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट, इट इज़ डिफाइंड एज द मिलीमोल्स ऑफ कोगुलेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड टू कोगुलेट पर लीटर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. पर लीटर, तो इसलिए यहाँ पे ये 100 में दिया हुआ इतना, तो 1000 ml में कितना? 1000 ml हो गया पर लीटर, ठीक है. तो पर लीटर में 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000 इतना मोल्स आ गया, 1 मोल आया. तो फिर मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कर दिया 10⁻³ से. ओके, तो इतना आ गया आंसर मिलीमोल्स. उसी तरह फिर से 100 ml में दिया हुआ है 100 ml ऑफ 0.1 m इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर 500 ml सॉल्यूशन. 500 ml सॉल्यूशन में ये कितना था? ये वॉल्यूम है और ये m, ये मोलैरिटी है. तो फिर मोलैरिटी इज टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ से मोल्स फाइंड आउट हो गया, तो इतना मोल्स. फिर 1000 ml में इतना. ओके, फिर आ गया मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर दो, वही आंसर है, ठीक है. प्रोटेक्टिव सोल, प्रोटेक्टिव सोल ये क्या है? सम प्रोटेक्टिव सोल, सम लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक सोल may act as protective soul for lyophobic or hydrophobic soul and protect them from coagulation by forming a hydrophilic layer among the colloidal particles and forming a hydrophilic layer among the colloidal particles. जैसे ये हो गया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक और लायोफिलिक है, ये डाला गया किसमें? लायोफोबिक और हाइड्रोफोबिक सॉल्यूशन में डाला गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देम. जितना हाइड्रोफिलिक सोल आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एज प्रोटेक्टिव लेयर, इसे को कहते हैं गोल्ड नंबर. द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक सोल, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक सोल इज डिफाइंड और रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर. जिंक बॉन्ड भी कहा जाता है इसे, ठीक है. बाय जिंक बॉन्ड इसे दिए थे, ठीक है. गोल्ड नंबर क्या है? 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मिलीग्राम 10 ml गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना मिलीग्राम लायोफिलिक और प्रोटेक्टिव सोल यूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं गोल्ड नंबर. ओके, अब देखते हैं 0.25 ग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड 0.25 ग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 100 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल. कैलकुलेट द गोल्ड नंबर.
0.25 gram of lyophilic colloid is used for protection of 100 ml. 100 ml के लिए इतना हो गया, ठीक है। हम गोल्ड नंबर पूछा, गोल्ड नंबर किस में फाइंड आउट करते हैं, 10 ml गोल्ड सोल्ट में कितना होगा, तो फिर 10 ml गोल्ड सोल्ट इक्वल्स टू 0.25 अपॉन 100 इंटू 10, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आया इतना मिलीग्राम, क्योंकि ये इतना ग्राम यूज़ कर रहे थे ना, तो इतना ये ग्राम में आंसर है, तो अपॉन 10⁻³ तो ये मिलीग्राम में आ गया, ओके। टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल्ट बाय एडिंग 1 ml ऑफ 10% ब्राइन सॉल्यूशन 0.025 ग्राम जिलेटिन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कैलकुलेट द गोल्ड नंबर, यही तो दिया है, इतना ग्राम में दिया है, अच्छा तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो, यही गोल्ड नंबर होता, ओके। अब देखते हैं emulsion liquid colloid is called emulsion. Dispersion phase या liquid dispersion medium में liquid हो गया, okay। टू टाइप्स का, oil in water type, milk और vanishing cream, ठीक है। फिर यहाँ पे water oil टाइप हो गया, water in oil, butter cream, cod liver oil, butter cream cod liver oil, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन, इमल्सिफायर और इमल्सिफाइंग एजेंट, स्टेबलाइजर्स द इमल्सन, OW टाइप प्रोटीन, स्टार्च, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, WO टाइप लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्प ब्लैक, हैवी मेटल फैटी एसिड। ये यहाँ पे था ऑयल, OW है ना, ऑयल इन वाटर, जब ऑयल वाटर में गिरा है तो यहाँ पे प्रोटीन, स्टार्च, नेचुरल, सिंथेटिक सोप, ठीक है। और जब वाटर इन ऑयल है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, लैम्प ब्लैक, हैवी मेटल फैटी एसिड, ठीक है। डिमल्सिफिकेशन द सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम emulsion. The separation of liquid from emulsion is called demulsification, which can be done by heating, freezing, centrifuging, etc. Demulsification, the separation of liquid from emulsion. The separation of liquid from emulsion is called demulsification, which can be done by heating, freezing, centrifuging, etc. Dilution. Emulsion can be diluted by any amount. Emulsion can be diluted by any amount of dispersion medium. On other hand, when dispersion phase is mixed, separate layer is formed. Emulsion can be diluted. Emulsion can be diluted by amount of dispersion medium. On the other hand, when dispersion phase is mixed, separate layer is formed. The gold number of protective सोल, गोल्ड नंबर सबका दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इतना कम इसमें डाला गया, तो फिर पावर ऑफ जो जितना कम होगा, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर, अगर जिसका कम में ही हो जाता तो फिर सबसे कम वाला होगा सबसे ज़्यादा। ये बी हो गया, सबसे कम है बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी, ठीक है। क्योंकि गोल्ड नंबर कम होगा तो ही प्रोटेक्टिव पावर उसका ज़्यादा, मतलब कम हल्का सा डालें और काम हो गया। ऑन एडिंग AgNO3 solution into Ki solution, a negatively charged colloidal sol is obtained when they are in. On adding AgNO3 solution into Ki solution, on adding AgNO3 solution into Ki solution, a negatively charged colloidal solution is obtained. On adding AgNO3 solution, ठीक है, इंटू Ki, AgNO3 को डाला गया Ki में, और नेगेटिवली चार्ज्ड, तो AgI तो बनेगा, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल इज ऑब्टेन्ड, मतलब I- आ गया इस पर, ठीक है। व्हेन दे आर इन,
अच्छा, किस में डालेंगे तो ऐसा होगा किस केस में, यहाँ पे 50 ml ज़्यादा क्या होना चाहिए, मतलब ज़्यादा KI होना चाहिए, तब तो ऐसा होगा। यस, तो फिर KI ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 50 ml ऑफ 0.1, यहाँ पे 50 ml ऑफ 0.1, ये तो दोनों बराबर हो गया नहीं। फिर 50 ml ऑफ 0.1 m और यहाँ पे 50 ml ऑफ 0.2, 2 5 से 10, 10 मिलीमोल, और यहाँ पे 0.1 इंटू 50, यहाँ पे 5 मिलीमोल, और यहाँ पे 5 2 सा 10, 10 मिलीमोल। तो यहाँ पे KI ज़्यादा है, KI ज़्यादा है, हाँ ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 15 टू 0.2, 2 5 से 10, और यहाँ पे 50 इंटू 0.1, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे AgNO3 ज़्यादा होगा, नहीं ये तो नहीं होगा। और बोला क्या, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये KI ज़्यादा होगा, ठीक है। द क्रिटिकल मसल concentration CMC is the concentration at which missile begins. Okay, best protective colloid gelatin इससे कम हो गया गम फाइबर और एग एल्ब्यूमिन, ये दोनों अप्रॉक्स सेम है। फिर उससे कम हो गया स्टार्च, जिलेटिन सबसे ज़्यादा, जिलेटिन से कम गम फाइबर, जिलेटिन से कम हो गया गम अरबिक, इस ये अप्रॉक्स बराबर है एग एल्ब्यूमिन के। फिर इससे कम हो गया स्टार्च, जिलेटिन गम एग एल्ब्यूमिन, उससे कम स्टार्च, ये